اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجنا۔ ٹھیک ہے، خیریت سے آپ لوگ شروع کریں۔ جی آقا، بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ منصوبات جی کی۔ آج منصوبات میں 15واں درس شروع ہوتا ہے منصوبات کا۔ منصوبات کا چوتھا ہے، کتاب کا 15واں سبق ہے، منصوبات کا چوتھا بتایا تھا۔ اسم 14 مقام ایسے ہیں کہ 14 مقامات پر اسم منصوب ہوگا۔ منصوب ہوگا یعنی علامت نصب یا تو فتحہ ہوگی یا الف ہوگی یا یا ہوگی یا جر بھی ہوتی ہے علامت نصب، جر مسلماتن۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا تھا۔ تو وہ 14 مقام کون سے جہاں اسم منصوب ہوتا ہے؟ 5 مفعول اور 5 نواسخ۔ کسی کا اسم مرفوع منصوب، کسی کا اسم منصوب خبر مرفوع، کسی کی اسم منصوب خبر منصوب۔ جی، تو یہ 10 اور 4 چیزیں کیا تھی؟ حال، تمیز، مستثنی، منادا۔ آج حال اور تمیز کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حال اور فی الحال تمیز کا تو پتہ نہیں، لیکن حال کی بات شروع کرتے ہیں۔ حال، حال آپ کو لام سے ورڈ سے سمجھ میں آ رہا نا؟ حال یعنی کیفیت، حالت حال۔ کیفیت۔ ایک دیکھیے، آپ دیکھیے، جاء زید راکبا، ضربت زیدا زیدا مشدودا۔ منچا فاطمہ، جی آقا۔ بات منصوبات کی چل رہی تھی جی، اور بتایا کہ 5 مفعول منصوب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حال، حال بھی منصوب ہوتا ہے۔ کون سمجھ رہا ہے یہ 3 مثالیں کیوں دی ہیں؟ کیونکہ تینوں منصوب آیا۔ کوئی سمجھ رہا ہے 3 مثالیں کیوں دی ہیں؟ سکینہ، سامرا، منچا فاطمہ، شارف، فرقان، علی اصغر، غلام علی، چراغ، ساجد، آپ میں سے کوئی سمجھ رہا ہے 3 مثالیں کیوں دی ہیں؟ جاء زید راکبا، زید آیا اس حالت میں کہ وہ سوار تھا۔ کیا حالت تھی اس کی آتے وقت؟ کیا حالت تھی؟ سوار تھا۔ ضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو مارا اس حالت میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، در حالی کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ لقیت زیدا راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی در حالی کہ ہم دونوں سوار تھے۔ کیا سمجھ میں آیا اس تینوں مثالوں میں؟ حال کو بتا اس کیفیت کو بتا آقا فاعل اور مفعول کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اس والی مثال میں یہ حال فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ جی آقا۔ اس والی مثال میں یہ حالت کس کی ہے؟ یہ مفعول کی ہے، اور اس والی میں دونوں کی ہے، فاعل کی بھی اور بھائی لقیت زیدن، میں نے ملاقات کی زید سے در حالی کہ ہم دونوں سوار تھے۔ راکبین تسنیہ ہے نا، راکبان۔ جی آقا۔ جی، تو حال ایک ایسا اسم منصوب ہے، دیکھیے اسم ہے کہ نہیں؟ راکبن مشدودن راکبین، ایک ایسا اسم منصوب ہے۔ کتنی چیزیں ہوگا اس میں؟ پہلی بات تو اسم ہے، دوسرا منصوب ہے کہ جو فعل انجام دیتے وقت فعل انجام دیتے وقت
फाइल की हालतों कैफियत या मफऊल की या फाइल और मफऊल दोनों की हालतों कैफियत को बयान करें। क्या समझे? देखिए आप मिसाल देखिए, हाल लिख लीजिए, पहले लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। लिखा? जी आगा लिखिए। अब जरा एक एक करके क्या करें, हम प्रैक्टिकल करें हैं। देखिए तारीफ किसी भी चीज की डेफिनेशन, तारीफ लिख ली, याद कर ली, हो जाएगी, लेकिन समझ में कब आती है? जब लिखी हुई को, डेफिनेशन, उस तारीफ को मिसाल पे प्रैक्टिकल कर लें तो जल्दी समझ में आ जाता है। नहीं? जी आप आगा। देखते जाइए, निगाह रखिए एक एक करके। हाल एक ऐसा इसमें मंसूब है, राकिबन मशदूदन राकिबैन मंसूब है जो फेल अंजाम देते वक्त फाइल की हालत को बयान करें। देखिए जा जैदुन, जैद आ रहा है, आना एक काम है ना, फेल अंजाम देते वक्त फाइल की हालत और कैफियत को बयान कर रहा है। जब जैद आ रहा था तो उसकी हालत और कैफियत क्या थी? राकिबन, वो सवार था जी। फाइल की हालत और कैफियत या मफूल की मशदूदन, इसम है मंसूब है, फेल जैद, ज़रबतु ज़ैदन में जब जैद को मार रहा था, ये फेल अंजाम दे रहा था, उस वक्त की हालत और कैफियत क्या थी? मफूल की, जैद की, मशदूदन, वो बंधा हुआ था। या फाइल की हो गई हालत और कैफियत, मफूल की या फाइल और मफूल दोनों की हालत। राकिबैन इसम है, सकीना, अस्मा, रोशनी, जी आगा। राकिबैन असमें था, राकिबान तस्निया था, बताया था। तस्निया का इराब हालत नस्ब जर में या आती है। मुस्लिमैन, ज़ैदैन, तो देखिए मंसूब है कि नहीं है? अलामत नस्ब या है, क्योंकि तस्निया में हालत नस्बी में इराब या आती है, हालत रफी में अलिफ आता है। ज़ैदान, मुस्लिमान, राकिबान, लेकिन ये मंसूब है, इसम है, मंसूब है। और ये मुलाकात करते वक्त जो फेल अंजाम दे रहे थे मैं और जैद, उस वक्त हम दोनों की कैफियत क्या थी? फाइल और मफूल की, उस कैफियत को बयान कर रहा है। पूरी तारीफ प्रैक्टिकल हो गई। कोई लफ्ज इधर या इधर ज्यादा कम तो नहीं है? नहीं आगा। पूरी तारीफ सादिक आ गई, प्रैक्टिकल हो गई। कोई चीज इसमें ऐसी तो नहीं जो इसमें थी अभी यहां नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल कराई अभी, या वहां कम थी यहां ज्यादा प्रैक्टिकल करा दी? नहीं आगा। हाल, ये तीनों मिसालें लिखिएगा। ये लिखने के बाद मिसाल यहां लिखिएगा कि फाइल की हालत, हालस फाइल, फाइल का हाल, मफूल का हाल और फाइल मफूल दोनों का हाल। ठीक है? तो हाल एक ऐसा इसमें मंसूब है, एक ऐसा इसमें मंसूब है। दो शर्तें इसी में हो गई, इसी जुमले में। एक ऐसा इसमें मंसूब है में ही दो शर्तें आ गई कि हाल सबसे पहले तो इसम होता है, दूसरा मंसूब होता है। हाल एक ऐसा इसमें मंसूब है जो फेल को अंजाम देते वक्त, फेल को अंजाम देते वक्त फाइल की हालत क्या थी या मफूल की हालत क्या थी या फाइल और मफूल दोनों की हालत क्या थी, उसको बयान करता है। जरूरी नहीं कि सबकी हालत बयान करे, हो सकता किसी मिसाल में फकत फाइल की हालत बयान कर रहा हो, जा ज़ैदुन राकिबन, किसी मिसाल में फकत मफूल की हालत बयान कर रहा हो, ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, या फकत या फिर दोनों की, एक ही जुमले में दोनों की हालत बयान कर रहा हो एक ही लफ्ज से। तो इसे कहते हैं हाल। या जैसे आप कहिए जाअत फातिमा, तो जाअत, ये मिसाल मैं मुन्नस की दे दूं है,
जी आगा। जाअत फातिमा तो ये फाइल है नहीं, जाअत फातिमा तो में जाअत फेल, फातिमा फाइल। तो क्या कहेंगे? राकिबन नहीं कहेंगे क्योंकि मुअन्नस है। राके बोलिए राकिबतन। जी, जाअत फातिमा तो राकिबतन। या ज़रबतो, मसलन ज़रबतो फला औरत, औरत अगर कोई किसी का भी नाम है, मतलब ज़रबतो किसी भी लड़की का नाम लो, ज़रबतो हमीदा। हमीदा, कुछ ऐसे नाम लो, ऐसे नाम मत लो, सकीना फातिमा नहीं हैं। आगा अर्शी। खदीजा। ज़रबतो अर्शी, मसलन मशदूदतन, मशदूदतन। तो मुअन्नस के लिए। तो अब मसला ये है कि हाल, इसे तो हाल कहेंगे, ठीक है। जहां जैदुन में जैद फाइल है, जैदन, लेकिन इसका जैद फाइल है, इसका हाल बयान हो रहा है, तो जैद को क्या कहेंगे? फाइल तो है ये, इसे, और इसका हाल बयान हो रहा, तो जिसका हाल लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जुल्हाल। जिसका हाल बयान होता है उसे क्या कहते हैं? जुल्हाल। जुल्हाल। यहाँ पर जैद जो कि फाइल है, फाइल जुल्हाल है, यहाँ मफूल जुल्हाल है, और यहाँ फाइल और मफूल दोनों जुल्हाल हैं, ठीक है। जुल्हाल के क्या माना है? जिसका हाल बयान किया जाए। जिसका हाल बयान किया जाए। जू के माना क्या है? साहब। साहब के। जू के माना है साहब, मालिक। जुल्क़ाद्र मसलन इज्जत वाला, माने जुल्क़ुव्वा कुव्वत वाला, जुल्हाल हाल वाला, यानी साहिबे हाल, साहिबे हाल। आगा आपका नाम भी तो यही है, जुल्क़द्र। जी 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 जी, जुल्हाल। हुसैन अगर नकवी नाम है, जुल्क़द्र कहते हैं, मतलब उसका तो भी आगा ये मरफू है, मरफू है। जी जी, अगर आप मुझे आवाज देंगी तो कहेंगी मुब्तदा है। ज़लक़ाद्र, जब मुझे आवाज देंगी तो आप कहेंगी ज़लक़ाद्र, क्योंकि आप आवाज दे रही हैं। मुनादा बनाया है मुझे तो मंसूब हो जाएगा। नहीं, बात टाइम जरूरी नहीं कि या लगाया जाए, इशारे से भी कहते हैं कदर और फला, या थोड़ी लगाते हैं ओ या ए। इसका मतलब ये लगाने का, ना लगा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि लगा हुआ नहीं हूं, लगा हुआ है, वो इशारे से लगा है। या जुल्हाल जिसका हाल आता है, जिसका हाल लाया गया है, जिसका हाल लाया गया है उसको जुल्हाल कहते हैं। समझ में आया? अब जुल्हाल कहीं फाइल ही नहीं है, मफूल भी है कहीं पे जुल्हाल, कहीं पे फाइल मफूल दोनों जुल्हाल है। बताया कि कभी हाल आता है फाइल का, कभी मफूल का हाल आता है, कभी फाइल मफूल दोनों का हाल आता है। लिहाजा जुल्हाल फर्क करता है, कभी जुल्हाल फाइल होता है, कभी मफूल होता है, कभी दोनों जुल्हाल होते हैं। अब मिसाल जो दी थी हमने, जाआ ज़ैदुन। अब ये मत कहना कि जनाब आपने कहा कि जिसका हाल लाया गया है वो क्या होता है? जुल्हाल होता है कि जुल्हाल है। ये जुल्हाल कैसे हो जाएगा? तो फाइल है, जाआ ज़ैदुन। जब ये जुल्हाल हो गया तो फिर जा का फाइल कहाँ है? भाई फाइल है, इस फाइल की हालत लाई गई है तो फाइल है, लेकिन इसका हाल लाया गया है तो ये जुल्हाल है। जुल्हाल भी है, फाइल है, जुल्हाल है, क्योंकि इसका हाल लाया गया है। इसे कहेंगे तरकीब। जब कैसे करेंगे तो कैसे करेंगे जुमले की? रोशनी गुंचा फाते में तरकीब कैसे करेंगे? जाआ फेले माजी मबनी पर फत, ज़ैदुन उसका फाइल है, मरफू है, अलामत राकिबान, और ये ज़ैदुन फाइल है, मरफू है, अलामत ज़म्मा है, और ये जुल्हाल है क्योंकि इसका हाल लाया गया है। राकिबान हाल है, मंसूब है, अलामत फतह है, हाल है ज़ैद का, फाइल का, तो ये हाल फाइल है, इसलिए जी। या मसलन मैं कहूं ज़रब तो ज़ैदन मशदूदन, वहां पर ज़रब तो में ज़रब तो, देखिए ज़रब तो कौन तरकीब करेगा फेल, और इसकी? उसमें जो ज़मीर है, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऐसे तरकीब कीजिए,
कौन करेगा? जैसे मैंने यहाँ की जा फेले माजी मबनी बर फत, इसे कहेंगे ज़रबतो में फेले माजी मबनी बर मबनी वर सुकून, मबनी बर सुकून, क्योंकि ज़रब बेसाकिन है, फेले माजी मबनी बर सुकून, तो उसका ज़मीर है, फाइल है, मबनी बर क्या है? मबनी बर ज़म है, लेकिन महल्ला मरफू है क्योंकि फाइल है, महल्लान क्योंकि फाइल के मकाम पे बैठी है ना, मबनी बर ज़म है तो मबनी है, मबनी बर ज़म है, लेकिन महल्लान महल्ली इराब है इसका, क्योंकि मरफू की जगह बैठी है, महल्लान मरफू है। ज़ैदन मफूल है, मंसूब अलामत नस्ब क्या है? फतहा है। मजदूद, और ये जुल्हाल है, ज़ैदन जुल्हाल है, मजदूदन हाल है, मंसूब अलामत नस्ब फतहा ज़ाहिरी है, और ये हाल है ज़ैदन मफूल का जो कि जुल्हाल है। समझ गए? जी जी आगा। आगा तो एक बार और बता दीजिए। ज़रब तो में ज़रब फ़ेल माज़ी मबनी बर सुकून है, ज़रब आगा ज़मीर ज़ाहिर है या ज़मीर मुस्ततिर? तो आप बताइए, तो ज़ाहिर दिखाई दे रहा है तो आपको या नहीं? हाँ, किसी चीज़ से पोशीदा हो। जी दिखाई दे रहा है तो जी। फेरे माजी मबनी बर सुकून तो ज़मीर है, मबनी है, मबनी पर ज़म है क्योंकि मबनी पर ज़म है, और महल्लन मरफू है क्योंकि फाइल है, मरफू है, महल्लन मरफू है क्योंकि फाइल है। ज़ैदन मफूल है, मंसूब है, अलामत नस्ब फतहा ज़ाहिरी है। एराब क्या है इसका? फतहा है। अरे किसने कहा एराब फतहा है? एराब नस्ब है, नस्ब की अलामत फतहा है। देखिए याद रखना, एक होता है एराब, एक अलामत एराब। एराब इसका नस्ब है, अलामत एराब फतहा है। जी भले आगा जी। तो ज़ैदन एराब क्या है? मंसूब है, अलामत नस्ब फतहा ज़ाहिरी है। क्यों? क्योंकि ये मफूल है। और जुल्हाल है, क्यों? क्योंकि इसका यहाँ हाल लाया गया है। मजदूदन हाल है, मंसूब है, अलामत नस्ब फतहा ज़ाहिरी है। ये हाल है ज़ैदन का जो कि मफूल है। या मसलन आपको जाअत फातिमतो राकिबतन, जाअत को क्या कहेंगे? जाअत फेले माजी मबनी पर सुकून, जाअत फेले माजी मबनी पर सुकून, फातिमा फातिमा फाइल मरफू अलामत रफ़ ज़म्मा, जाअत फातिमतो राकिबतन, और फातिमा हाल भी है क्योंकि इसका जुल्हाल भी है क्योंकि इसका हाल लाया गया है। राकिबतन हाल है, मंसूब अलामत नस्ब फतहा ज़ाहिरी है। तो ये मुअन्नस क्यों लाया गया? क्योंकि जुल्हाल मुअन्नस था। ठीक है? अब बताइए, जल्दीबाजी में तो नहीं समझाया मैंने? जल्दी तो नहीं समझाया? देर यानी जल्दी जल्दी बता दिया हो ऐसे को तो नहीं, बड़े आराम समझ में आ गया, बड़े आराम से सुकून से। ठीक है? तरकीब समझ में आ गई? फेल जी आगा। फाइल हाल, यानी फेल फाइल जुल्हाल होगा वो उसका हाल होगा, या फेल फाइल मफूल जो जुल्हाल होगा उसका हाल होगा, या फेल फाइल मफूल और हाल दोनों जुल्हाल होंगे। ठीक है? अब हाल की किस्में, अक़सामे हाल की किस्में सेम टू सेम वही हैं जो खबर की किस्में हैं। क्या? मुफरद, जुमला, शिबे जुमला मुफरद भी मुश्तक होता है और जामिद। या जामिद, जुमला, जुमले फेलिया, शिबे जुमला, जुमले खबरिया, नहीं फेलिया या जुमले इस्मिया। जुमला दो ही तो होते हैं जुमले, या फेलिया होता है या इस्मिया होता है, या शिबे जुमला। शिबे जुमला जो के
जार और मजरूर और ज़र्फ होता है। ज़र्फ समझ में आ गया होगा ना? इतने दिन पहले तुम्हें आप लोगों को ज़र्फ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जी, मफूल फी पढ़ने के बाद ज़र्फ समझ में आ गया आपको। तो मफूल में ज़र्फ होता है, इसमें भी ज़र्फ होता है? मफूल फी को ज़र्फ भी कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मफूल यानी हर मफूल फी तो नहीं, हर मफूल फी तो ज़र्फ होगा, लेकिन हर ज़र्फ मफूल फी नहीं होता है। या हो देखिए भाई, देखिए यहाँ पे जब कहने नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए फौकल कुर्सी, फौक मुजाफ है, कुर्सी मुजाफ इलैह है, लेकिन फौक का मंसूब क्यों है? क्योंकि मफूल फी है कुर्सी पर, ठीक है, मफूल फी है ये खबर भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आप देखिए मिसालें देखिए, मुश्तक की मिसाल, अभी जो मैंने मिसाल दी मुश्तक की दी सारी। जाआ ज़ैदुन राकिबन, मुश्तक याद है किसे कहते हैं? इसमें फाइल फाइलुन राकिबुन, राकिब इसमें फाइल है कि नहीं? मशदूद की मिसाल दी थी, मफऊल मशदूद मफऊल बताया था। मुश्तक्कात 6 कितने हैं? मफूल, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें मुबालगा, इसमें ज़मान, इसमें मकान, इसमें आला, इसमें तफसील, तो वो ने कहा जाता है। तो देखिए राकिब फाइल उनके वजन पे इसमें फाइल है कि नहीं? मुश्तक की मिसाल है नहीं है? जाआ ज़ैदुन राकिबन, मेरे ज़ैद आया, जाआ ज़ैदुन ज़ैद आया, राकिबन दर हाली के वो सवार था, सवार आया। या मसलन कर्रा ज़ैदुन असदन। देखिए पहली बात तो ये इन्होंने मिसाल तो दे दी है ज़ाहिरन, लेकिन कभी भी हाल शायद जामिद नहीं आता, लेकिन जब भी आता है कि जब उस जामिद से मुराद मुश्तक लिया गया हो, जब उस जामिद से मुराद मुश्तक लिया गया हो तभी ला सकते हैं। जैसे कर्रा ज़ैदुन, ज़ैद ने हमला किया दरहाली के शेर की तरह, तो शुजा, शेर से मुराद शुजा है ना, तो शुजा है सिफते मुशब्बहा, हुआ नहीं? बताइए मुश्तक जी। यह हाल जो है कभी जामिद नहीं आता। अगर आपको ये जामिद दिखाई दे रहा है यहाँ पे असद हाल जामिद, तो यहाँ पर असद से मुराद शेर नहीं है, शुजा है। ज़ैद ने शेर की तरह हमला किया, शुजा हमला किया, ठीक है, याद रहेगी ये बात कि अगर हाल जामिद अगर आएगा तो उस जामिद से मुराद कोई मुश्तक ही होगा, इसमें सिफत मुशब्बा मुबालगा वगैरह। जुमला फेलिया की मिसाल देखिए, सहारा, नहीं, जाआ सईदुन, जाआ सईदुन यरकुज़ु, जाआ सईदुन यरकुज़ु, रकाज़ा यरकुज़ु कहते हैं दौड़ने को। यरकुज़ु फेल मुज़ारे है कि नहीं? जी है। हुआ इसके अंदर फाइल है कि नहीं? जी बताइए, फेल और फाइल जुमला फेलिया बनता है कि नहीं? जी। जो जुमला फेल और फाइल से बनता है जुमला फेलिया कहलाता है। जाआ सईदुन, मेरे पास सईद आया, दरहाली के वो दौड़ता हुआ आया। अब आप कहेंगे कि अगर ये फेल और फाइल जुमला फेलिया है और अभी बताया हाल मंसूब होता है, तो ये मंसूब कहाँ है? कौन बताएगा कहाँ है मंसूब? महलन मंसूब, क्योंकि बताया था कि जुमला और शिबे जुमला का इराब महली होता है, मबनी कलमे के हुक्म में माना गया है इनको। पूरे जुमले का इराब महली है, वरना यरकुज़ु का तो खुद का तो इराब है ना, पहले मुज़ारे मरफू अलामत रफ़ ज़म्मा है। पूरा फाइल और फेल और फाइल हुआ मिलके जुमले का इराब महलन मंसूब है, क्योंकि सईदुन ज़ुलहाल है, उसका ये हाल है कि सईद कैसे आया? दौड़ता हुआ आया। जुमले इसमिया की मिसाल, सहारा, सहारा मतलब आप यहाँ कह लीजिए सहारा सकीना, सहारा सामरा, सहारा गुंचा फातिमा, सहारा रोशनी। मतलब यार इन सबके साथ सहारा नहीं आएगा, सहारत आएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों के लेके आप लोग भी याद रखेंगे, सहारा गुंचा फातिमा सकीना वगैरह वगैरह। ये सब कब बेदार हुई है? कब बेदार हुई? सबाहन, वन्नासु नाइमून,
जब लोग सो रहे थे। वन्नासो नाइमून, दर हाली के लोग सो रहे थे। अन्नासो मुब्तदा, नाइमून खबर। मुब्तदा खबर बताइए जुमला इस्मिया बनती है कि नहीं? जी मुब्तदा खबर से बना हुआ जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है कि नहीं? जी आवा। तो जी यहाँ हाँ। यहाँ पे आप कहिए मसलन फाइल तो बयान कर दूं, किसका नाम लिखूं? लड़ना मत, चलो फातिमा लिख देता हूँ। सहारत फातिमा तो वन्नासो नाइमून, फातिमा बेदार हो गई शहर में सुबह में। शहर से मुराद वो सीन है रे वाला नहीं, सहारा बेदार होने के माना में, उठने के माना में है। फातिमा उठ गई, दरहाली के लोग सो रहे थे, यानी जब लोग सो रहे थे तब उठ गई। ठीक है। आप ये लड़के कहेंगे कि लड़कियों का नाम यहाँ क्यों? क्योंकि लड़कियां ही उठती हैं ऐसे टाइम तो। ठीक है। सहारत फातिमा तो वन्नासो, बोलिए। फातिमा बेदार हुई, दरहाली के लोग सो रहे थे। जब फातिमा बेदार हुई तो हालत क्या थी बेदार होते वक्त? लोग सो रहे थे। अब बताइए सहारत फेल है कि नहीं? जी फातिमा फाइल है, मरफू अलामत रफ ज़म्मा है, और ये फातिमा जुल्हाल है क्योंकि इसका हाल बयान किया। नासो मुब्तदा, नाइमून खबर। मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया, महल्लान मंसूब है क्योंकि जुमला है। मंसूब क्यों है? क्योंकि फातिमा का हाल है। ठीक है। वरना आप यहाँ पे मुज़क्कर लाना होता तब ये कह सकते थे सहारा साइदून वन्नासु नाइमून। ठीक है। जुमला फेलियर की मिसाल दे दी, जुमला इसमें जार और मजरूर की। रअयतु सईदन, रअयतु सईदन फिद्दारे, फिद्दारे, मैंने सईद को देखा। दरानी के वो कहां था? फिद्दारे घर में था। जी 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 आगा। घर में था। सईद इस हालत में कि वो घर में था तब देखा मैंने। अब बताओ फिद्दारे फी जार है, दार मजरूर है, अलामत जर कसरा ये नहीं, जार मजरूर। महल्लन मंसूब है क्योंकि सईद का हाल है, हाल मंसूब होता है। जार मजरूर की मिसाल, ज़र्फ की मिसाल देख लीजिए। तकल्लमा सईदुन, तकल्लमा सईदुन फौकल कुर्सी। देखिए फौक, अब आप कहेंगे कि भाई फौक इस्म है, मंसूब है, सईद के कलाम करने के जगह को बयान कर रहा, तो ये तो मफूल फी है। ठीक है, ज़र्फ है, मफूल फी हम भी तो कह रहे हैं ज़र्फ है, लेकिन ये मुजाफ होके ज़र्फ जो है मुजाफ हुआ है ना कुर्सी की तरफ, मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है। अब बताइए फौकल कुर्सी मुजाफ मुजाफ इलैह होके, देखिए फौका मंसूब है क्योंकि ज़र्फ है, लेकिन मुजाफ है, कुर्सी मुजाफ इलैह है। जैसे ये जार मजरूर, ऐसे मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह भी मजरूर होता है। अब ये पूरा मिलके बन रहा है हाल महल्लन मंसूब, क्योंकि हाल मंसूब होता है। ठीक है। जी लिख लिया आप लोगों ने? सईद ने कलाम किया, दरहाली के वो कुर्सी पे था, कुर्सी पे बैठ के कलाम किया। दरहाली के वो कुर्सी पर था, कलाम किया उसने। है हाल या नहीं? अब बताओ इसमें से सिर्फ ये दो ऐसे हैं जिनका इराब लफ्जी होगा, बाकी सबका इराब, क्योंकि जुमला शिबे जुमला का इराब मैंने बताया महल्ली होता है, पहले से बताता आ रहा हूं। जी फातिमा, सकीना, उनका फातिमा, रोशनी, सामरा। जी आगा। मिटा दूं? जी फुरकान लिखा? समझ में आया? गुलाम अली अली असगर याद होना चाहिए। इतने समझ आहिस्ता आहिस्ता, और इसीलिए पढ़ा रहा हूं समझा समझा के। में कितनी दर्स का आएगा एग्जाम में? जी नेफ में कितनी दर्स तक? छठे से लेके 5 तक का तो ले चुका हूं ना।
पेपर जी जी हम्म लिखें। जी हाँ तरकीब करें। देखिए हाल हो गया, ये हाल समझ में आ गया सबको। जी जी आ गया। हाल और जुलहाल की शर्तें, शराइते हालो जुलहाल। सुने, हालो जुलहाल की शर्तें क्या है? हाल नकरा हो जी। असली ये है कि असली है, कभी कभी उल्टा हो जाता है लेकिन इसका मतलब वाजिब नहीं है। असली ये है कि हाल नकरा हो और मुअख्खर यानी बाद में हो। अभी सारी मिसालें आपने देखी कि नहीं देखी? हाल बाद में था या नहीं था? जा जी आ गया। सईदुन राकिबन, जा सईदुन राकिबन, ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन। हाल नकरा था नहीं था? राकिब नकरा था या मारफा था? सवा नकरा। नकरा था। मशदूद नकरा था। नकरा। तो हाल, अभी जो सारी मिसालें थी उसमें क्या था? हाल नकरा नकरा। था, बाद में था, ये असल है। और जुलहाल मार्फर है। असली है कि हाल नकरा हो और बाद में हो, जुलहाल मारफा हो और मुकद्दम हो। सारी मिसालों में ऐसा ही था नहीं था? भले अब सारी मिसालों में ऐसा ही था। अभी जितनी भी मिसालें थी, सईद या जा जैदुन, जैद मारफा था, फातिमा मारफा थी, जी ठीक है, मुकद्दम थे जी, जी ठीक है। अब ये कह रहे हैं, अब लेकिन अगर असल तो ये है, लेकिन और अगली किताबों में तफसील से आएगा, तो इसमें तो इतना ही बयान कर दिया है। लेकिन अगर जुलहाल नकरा हो, इन्होंने कहा जुलहाल मारफा हो और मुकद्दम हो, लेकिन अगर जुलहाल नकरा हो जाए तो जरूरी है कि हाल मुकद्दम हो, हाल मुकद्दम हो जुलहाल पर। जैसे मसलन आपसे मैं कहूं जा राकिबन रजुलुन। जा फेल है, रजुल फाइल है, मरफू अलामत रफ़ ज़म्मा है, और ये जुलहाल है, इसका हाल आया राकिबन। बोलिए, आप कहेंगे कि अभी तक तो हाल बाद में आ रहा था, मुकद्दम क्यों? कहा कि जब जुलहाल को मारफा ये होता है कि असली है कि मारफा हो, लेकिन यहाँ नकरा हो गया, इसलिए हाल को मुकद्दम करना वाजिब है। हाल को मुकद्दम करना, इन्होंने यहाँ पे इतनी बात बयान की, मुकद्दम आती है ये, लेकिन आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी तो पूछ सकते हो कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों मुकद्दम करना वाजिब है? क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? अगर हम जा रजुल राकिबन कह देंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? कहा कि यहाँ कुछ नहीं होगी, हालत नस्बी में जाके गड़बड़ हो जाएगी, हालत नस्बी में जाके गड़बड़ हो जाएगी। मसलन मैं कहूं ज़रब तो बोलिए, ये मिसाल गलत है। क्यों? आप बताइए यहां पे राकिबन क्या है? राकिबन आप कहेंगे हाल है, तो मैं कहूंगा सिफत है। आप मेरी बात काट के दिखाओ कि सिफत नहीं है। ये सिफत मौसूफ में मुताबिकत होनी चाहिए। मौसूफ अगर मंसूब है तो सिफत भी मंसूब हो, वो मुज़क्कर हो ये भी मुज़क्कर हो, वो नकरा हो ये नकरा हो, एराब उसका जो हो वो ये हो। सारी शराइत सिफत मौसूफ के पाए जा रहे हैं इनमें या नहीं?
جی میں نے ایک ایسے مرد کو مارا جس کی صفت یہ تھی کہ وہ سوار تھا، تو صفت موصوف کم ہو جائے گی گڑبڑ یا نہیں؟ جی ہاں، اسی لیے کہا ہے کہ ایک مثال کی کیا بات کریں، ساری کی کر دو کہ حال جب بھی ذوالحال جب بھی نکرا ہوگا تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ ان مثالوں میں آ کے گڑبڑ نہ ہو صفت موصوف سے، ورنہ رجلا راکبان صفت موصوف سمجھ میں آ جائے گے۔ اس لیے یہاں پر واجب ہے کہ آپ کہیے راکبان رجلن، راکبان رجلن۔ اب اس سے پتہ لگے گا کہ یہ حال ہے، ورنہ اگر یہ بعد میں لے آتے رجلن راکبان تو صفت موصوف میں گڑبڑ ہو جاتی۔ سمجھ گئے کیوں ہے؟ اگر حال ذوالحال نکرا ہو جائے تو حال کو مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اگر حالت نصبی میں آ جاتے اور حال کو مؤخر ہی رکھتے تو صفت موصوف میں گڑبڑ آ جاتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ مٹا دوں؟ ہلو، لکھ لیا؟ جی آقا۔ دیکھیے اگر ذوالحال نکرا ہو تو ضروری ہے کہ حال کو مقدم، حال مقدم ہو ذوالحال پر، مقدم ہے نہیں۔ جہاں رجل راکبن رجلن ضربت راکبان، فرق یہ ہے کہ یہاں پر راکبان فاعل کا حال ہے اور یہاں پر راکبان مفعول کا حال ہے۔ رجلن ذوالحال ہے، یہاں رجلن ذوالحال ہے، یہاں فاعل یہاں مفعول ذوالحال ہے، مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ حال ہمارا ذوالحال نکرا ہے۔ اگر حال کو مقدم نہ کریں گے تو یہاں پر آ کر ایسی مثال میں صفت موصوف میں گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے مقدم کرنا واجب ہے۔ انہوں نے اتنا بیان کیا، یہ ڈیٹیل میں نے اب بتائی ہے کہ کیوں مقدم کرنا واجب ہے، باقی انہوں نے نہیں بتائی ہے، وہ اگلی کتاب میں آپ کو بتائیں گے۔ درس 15 15واں سبق منصوبات 4، منصوبات کا چوتھا درس، کتاب کا 15واں درس، حال و تمیز، جو کہ ہم نے حال پڑھا ہے۔ حال اسم منصوبی کے، حال ایک ایسا اسم ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط منصوب، ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جو حالت و کیفیت فاعل یا مفعول کی، فاعل یا مفعول کی حالت و کیفیت، تین شرطیں ہو گئی نہیں ہو گئی بھائی؟ حال کی تین شرطیں ہو گئی نہیں؟ پہلے تو اسم ہو، دوسرا منصوب ہو، تیسرا فاعل کی یا مفعول کی، دونوں کی حالت و کیفیت کو بیان کر رہا ہو۔ کب کی حالت و کیفیت؟ در زمانے انجام فعل، فعل کو انجام دیتے وقت، فعل کو انجام دیتے وقت فاعل کی کیا حالت ہے یا مفعول کس حالت میں یا دونوں کس حالت میں، اس کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے دونوں کی مثال نہیں دی ہے، فقط فاعل کی حالت یا مفعول کی حالت بیان کی ہے۔ جاء فعل ہے، سعید فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، ضاحکا حال ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے، حال ہے، اور سعید ذوالحال ہے۔ سعید ہنستا ہوا آیا، سعید سکینہ گنچا روشنی، جی آقا۔ روشنی غائب، سامرا، سعید آیا در حالی کہ وہ ہنس رہا تھا۔ رأیت فاطمۃ راکبۃ، رأیت فعل اور فاعل ہے، ماضی مبنی بر سکون، تو فاعل ہے، مبنی بر ضم ہے، محلن مرفوع ہے، فاطمۃ منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے، مفعول ہے، راکبۃ حال ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے۔ یہاں پر کس چیز کا حال بیان ہوا ہے؟ مفعول کا، مفعول بے کا حال بیان ہوا ہے۔ فاطمہ سوار دیدم، فاطمہ را، فاطمہ کو میں نے سوار دیکھا در حالی کہ وہ سوار تھی۔ ابھی کہہ رہے ہیں بے شخصی کے دارندہ حال است، وہ شخص کے جو حال رکھتا ہے، جس کا حال بیان ہو رہا ہے، اسے ذوالحال گویا۔ جیسے سعید و فاطمہ، ان دونوں مثالوں میں دونوں کیا ہیں؟ ذوالحال ہیں۔ یہاں پہ سعید کا حال آیا ہے، یہاں پر فاطمہ کا حال آیا ہے۔ اقسام حال، حال کی قسم حال نیز، حال بھی، نیز یعنی مانند خبر، خبر کی طرح، پر سے قسمت، حال بھی خبر ہی کی طرح تین قسمیں ہیں، بس وہی خبر کی قسمیں، بس وہاں پہ وہ خبر تھی، بعض جگہ وہ خبر مرفوع تھی، کب؟ حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور بعض جگہ منصوب تھی، افعال ناقصہ وغیرہ ان کی خبر مرفوع منصوب ہوتی ہے، مبتدا کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے
اس میں مفرد ہو گیا تو حال اس میں مفرد ہوگا، مفرد بھی آپ نے پتا ہے یا مشتق ہو گیا. جاء سعید راکبن، سعید میرے پاس آیا در حالی کہ وہ سوار تھا. تو راکبن دیکھو مشتق ہے، مفرد ہے کہ نہیں؟ مفرد سے مراد یہاں پر تسنیہ جمع نہیں ہے، مفرد سے مراد جملہ شبہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جملہ یا شبہ جملہ نہیں ہے. تو دیکھیے مشتق ہے، اور مشتق بھی ہے کیونکہ فاعل ہے، راکب فاعل. اسدن اسم ہے، مفرد ہے کیونکہ یہ جملہ شبہ جملہ نہیں ہے، اور یہ جامد ہے، مشتق نہیں ہے، نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول، نہ صفت مشبہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. سعید کرہ زیدون اسدن، سعید نے ہم شیر کی طرح حملہ کیا، یا سعید نے حملہ کیا در حالی کے شیر کی طرح. یعنی شیر سے مراد ہے شجاع، بہادر. یا پھر حال جملہ ہوگا، جملہ بھی جملہ اسمیہ. سہارا سعید والناس نائمون، سہارا فعل ماضی مبنی برفات، سعید فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ، فعل و فاعل، والناس واو. اس واو کو جب جملہ اسمیہ جب حال واقع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک واو آتی ہے، اسے واو حالیہ کہتے ہیں. تو کتنی واو ہو گئی؟ ایک واو عاطفہ ہوتی ہے، ایک واو معیت ہوتی ہے، یہ واو حال ہے. واو قسم بھی آتی ہے، واللہ واو مختلف واو ہیں، یہ واو حالیہ کہلاتی ہے. والناس نائمون، ناس مبتدا مرفوع علامت رفع ضمہ، نائمون خبر علامت رفع واو. مرفوع علامت رفع کیا ہے؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، زیدون نائمون مسلمون. تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ محلا منصوب. بولیے بھائی، کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ انچا فاطمہ سکینہ سامرا جی. جملہ اور یا پھر جملہ حال جو ہوگا جملہ فعلیہ ہوگا. جاء سعید، جاء فعل ماضی مبنی برفات، سعید الفاعل مرفوع علامت رفع ضمہ، یرکض فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ، ہوا اس کا فاعل. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ، حال ہے محلا منصوب ہے. سعید آیا دوڑتا ہوا در حالی کہ وہ دوڑ رہا تھا. یا پھر حال شبہ جملہ ہوگا، شبہ جملہ میں بھی یا جار و مجرور یا ظرف. جار و مجرور رأیت فعل و فاعل، سعیدا مفعول، فی الدار جار و مجرور محلا منصوب. تکلم سعید فوق الکرسی، سعید نے کلام کیا در حالی کہ کرسی کے اوپر تھا، کرسی پہ اوپر بیٹھ کر. تو دیکھیے تکلم فعل ماضی مبنی برفع، سعید فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ، فوقا ظرف ہے یعنی منصوب ہے، کیونکہ ظرف آپ کو معلوم ہے منصوب ہوتا ہے مفعول فی. اس میں مرفوع منصوب ہے کیونکہ ظرف ہے. فعل کلام کرنے کا جو فعل کا جو جگہ بتا رہا ہے، کہاں تھی جگہ؟ فوق الکرسی. تو فوق مضاف ہے، کرسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ان کا اعراب ہو جائے گا محلی، محلا منصوب، کیونکہ یہ حال ہے سعید کا. ابھی دیکھیں درش اس جملے بالا اوپر کی جو 6 جملے دیے ہیں، 1 2 3 4 5 6. سعید جو ہے وہ ذوالحال ہے، سب میں سعید کی مثال دی ہے انہوں نے. سعید ذوالحال ہے. راکبن اسدن حال مفرد ہیں، کیونکہ یہ دونوں راکبن اور اسدن حال مفرد ہے، منصوب ہے علام ظاہری. ظاہری مطلب مفرد ہے، منصوب ہے، فتحہ ہے. الناس نائمون جملہ اسمیہ، یرکض جملہ فعلیہ. یہ جملے حال ہیں، حال جملہ ہے، یہ محلا منصوب ہیں. فی الدار اور فوق الکرسی شبہات جملہ ہیں، یہ محلا منصوب. ترکیب کیسے ہوگی؟ سہارا فعل وہی بتا دیا، فعل ماضی مبنی برفات، سعید الفاعل ذوالحال مرفوع علامت رفع ضمہ، واو واو حالیہ، الناس مبتدا، نائمون خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ حال ہے محلا منصوب. شرائط حال و ذوالحال، حال اور ذوالحال کی شرطیں. اصل یہ ہے کہ حال نکرہ ہو اور مؤخر ہو، یعنی بعد میں آئے، ذوالحال معرفہ اور مقدم ہو، جیسے اوپر کی مثالیں جو گزری ہیں، جاء سعید راکبن. لیکن چنانچہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو ضروری ہے کہ حال اس پر مقدم ہو، جیسے جاء راکبن رجل. دیکھیے راکبن حال ہے، نکرہ ہے مقدم ہے، رجل ذوالحال ہے، نکرہ ہے مؤخر ہے. یہ ہم نے حال پڑھ لیا، تمیز انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ